आजकल ना Agastya's on a health trip. And you know these teenagers and their नखरेज. I mean कोई चीज जो healthy है जब तक amazing ना दिखे भाई सब खाएंगे नहीं. So what do I do? Do I give up? Never. चलिए आज बनाते हैं एक health infused protein bowl with थोड़ा सा tofu magic. And stir fry के लिए ना I'm using some exotic vegetables like asparagus, dried mushrooms. बच्चों को अगर exotic vegetables डालते हैं एक तो they are quite healthy as well. Plus it's a nice change, right? यहाँ मैंने asparagus का जो harder part है उसे blanch करने के लिए रखा है. उसके जो spears हैं ऊपर का हिस्सा which is usually soft, अब just let them be. Broccoli यहाँ पे blanch होके पड़ी हुई है and dried mushrooms को मैंने यहाँ rehydrate करने के लिए रखा हुआ है. See how this looks? आप शिटाके मशरूम्स यूज कर सकते हैं, आप रेगुलर मशरूम्स भी ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं. अब आते हैं टोफू पे बिकॉज हमारे डिश का हीरो इज टोफू. You need to use extra firm tofu because we're making tofu stir fry. It has to hold its structure. So here I have a nice extra firm tofu. इसका जो excess moisture है उसे पहले जरूर निकाल दीजिए ताकि जो मैरिनेड हम बना रहे हैं वो अच्छे से अंदर तक टोफू के जाए. All right, so okay, yeah, asparagus is done. Just going to quickly strain it. Blanching का क्या rule होता है? Immediately इसे ice water में हमें डाल देना है because you want to maintain that beautiful crunchiness in your vegetables. Okay? साथ ही कलर देखिए कितना अच्छे से retain है. It's nice bright green color. That's what you want. Okay, time to marinate the tofu. अभी tofu usually लोगों को bland लगता है, इसलिए it's very important कि उसे कम से कम 30 minutes के लिए आप marinate करके रखें ताकि सारे juices, सारे flavors अंदर तक seep in हो जाएं. So marination is really something that you prefer, but this is my favorite one. We start with some soy sauce, some maple syrup, थोड़ा सा sriracha, a little sweet chili sauce, some grated ginger, and a dash of sesame oil. Now we add the tofu slices. Alright, इसे साइड में रखते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं. I'm going to slice up some spring onions, cherry tomatoes. पैन गरम करने के लिए मैंने रखा है. Just going to drizzle in some oil. जैसे ही तेल गरम हो जाए हाई हीट में हम टोफू को सेयर करेंगे ऑन ऑल द साइड्स. उससे क्या होगा, सारे जूसेस अंदर सील इन हो जाएंगे, थोड़ी सी ब्राउनिंग के वजह से अच्छा फ्लेवर आएगा एंड इट्स गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ मैजिक टू आवर हाई प्रोटीन बोल. सो अब सारा मैजिक होगा इसी पैन में. यहाँ थोड़ा सा तेल भी बचा हुआ है. हीट को हाई करेंगे, फ्लेम हाई होना चाहिए. हाई फ्लेम में वी आर गोना कुक आउट ऑल द वेजिटेबल्स. पहले डालेंगे गार्लिक, देन गोज इन द स्लाइस्ड जिंजर, माय स्प्रिंग अनियंस, एंड देन एक बाय एक करके मेरे वेजिटेबल्स जाएंगे. So we go in with the asparagus, broccoli. Give it a nice toss. साथ ही ये जो मेरे asparagus के heads थे ना, which are the softer parts of the asparagus, वो भी मैंने डाल दिया. ये जो मेरा टोफू का marination है, वो जाएगा हमारे सारे vegetables में. To give it a nice saucy effect. Flavor भी add करेगा. Here, my dried mushrooms. जिन्हें मैं डालूंगी थोड़ा सा इसका पानी भी. Throw in the cherry tomatoes. For that थोड़ा सा इनमें a little tanginess. And we are done. Let's dig in. Oh my God.
The veggies are tasting so good. And with that sticky tofu, the combination is just wow. अब मेरा मन कर रहा है और खाऊं. But I promised you another recipe. So another recipe it is. Let's move on to it. Same tofu को मैं ना एक delicious wrap में turn कर दूंगी. That too with these rice paper rolls, which are again trending a lot. And teenagers को ना जो चीजें trend करती हैं बहुत पसंद आती. चलो, we'll also jump on the rice paper bandwagon. तो रैप के लिए सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग सा सॉस बनाते हैं. एंड पीनट बटर गोज ब्यूटिफुली विद दिस. सो इन अ बोल लेट्स ऐड सम ऑफ द सेम सोय सॉस एंड पीनट बटर. ग्रेट कॉम्बिनेशन. साथ ही जस्ट फॉर अ लिटिल स्पाइस वो सारे सॉसेस जो आपने यूज किए थे इसके पहले जस्ट यूज द सेम. या कोई और सॉस अगर आपको पसंद है यू कैन ऐड दैट एज वेल. जस्ट गिव इट अ नाइस मिक्स. Yeah, it looks like caramel, but it's not sweet at all. Yum! अब लेंगे थोड़ा पानी and ये जो rice paper है इसे हम डाल देंगे. You just need to soak this for a few seconds and साथ में उसे feel करते रहिए so that you know exactly किस point में वो pliable हो गया है. बहुत ज़्यादा soft हो जाएगा ना तो भी handle करना difficult हो जाता है. अभी आपको दिख रहे हैं ना इसके marks और ये फोल्ड करने में टफ है. टेक्स अबाउट 5-6 सेकेंड्स. एंड नाउ यू कैन फील द टेक्सचर. देखिए किस तरह से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया एक साइड से. प्लेस इट ऑन द सेंटर. अब ये टोफू का पीस जाएगा जिसे मैंने 1/2 किया है. व्हाटएवर वेजीज यू लाइक यू कैन ऐड इट. अभी मैं सिर्फ जुलियंस ऑफ कैरेट यूज कर रही हूँ. सम क्यूकम्बर्स, सम बेबी स्पिनच. ये ना एक ऐसी डिश है जिसमें ढेर सारा आप वेजीज डालोगे तो भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी. अनदर टोफू, सम स्प्रिंग अनियंस. आई हैव सम नापा कैबेज एज वेल, वो भी डाल देती हूँ. अगेन लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स को यूज करने का बहुत ही मजेदार तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू wrap this up. Come on, hurry up, try it now.